बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेलकम टू दिस nearly last lecture of our series of lecture on deflections of beam. We have discussed all the theory. We have discussed all the theory related to the deflection of beam. We have derived the formula. We have also gone through the double integration of that differential formula, differential equation of the elastic curve. And then the last lecture, we tried to solve few examples as well. So those were the solved example from different books. And today, inshallah, we will be solving some numerical problem, unsolved numerical problem that are usually given at the end of the topic, at the end of the chapter in the books. So that because usually students think that the solved example are already solved. So if they find the solution of any unsolved problem, they feel the confidence and they feel that their confidence level built up. So that's why I've included these two or three, I think, numerical problem. I've chosen them because there were so many problems, so I've tried to choose them in the criteria that I adopted for selection of these problems were so that they should be versatile and they should have enough difficulty, they should have enough variation so that the student might be able and should be able to solve as many problems as possible by themselves. So let's start our lecture and let's start seeing the problem. So this is the problem 6.3 and I've chosen this from the Pytel and Singer book. It's the second edition. Perhaps I've given you, I think most of you have already the PDF version of this book as well. So let's read the description of the problem. So problem says that the intensity of the distributed load on the cantilever beam. So the beam is cantilever. So we'll see what is the intensity of the load, and the load varies linearly from 0 to W naught. So it means it will be a triangular load, uniformly varying load, and it's varying linearly because there can be a non-linear load as well. So derive the equation of the elastic curve. We have to derive the equation of the elastic curve, the equation of the deflection, and equation of the slope as well. So this is the figure of the beam. As you can see, this is cantilever beam. The intensity of the load is 0 at the fixed end, and we are calling that to be end A, and then it's varying linearly, and the maximum amplitude or the intensity of the load is W naught at the free end. The length of the beam is L. Y-axis is on this is the origin at A, and x-axis is on the horizontal. So let's ट्राई टू जो है वो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हमने अटैम्प्ट करना है। जिस तरीके से आपने देखा है कि हमने जो अटैम्प्ट किए हैं लास्ट में जो पहले, उसमें हमने ये मेथडोलॉजी रखी है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर को देखते हैं और फिर दोबारा फिगर को देखते हैं। तो यहाँ जो फिगर को देखने के बाद और पढ़ने के बाद बात समझ में आ रही कि यूनिफॉर्मली वेरीइंग लोड है और कैंटिलीवर बीम है। तो अब अगर हम अपने स्टेप्स को रिकॉल करें तो जो हमारे स्टेप्स हैं वो 3-4 स्टेप्स हमने आपको सिखाए थे कि जो सबसे पहला स्टेप्स है वो आपने रिएक्शन और कैलकुलेट करनी है, और वो इसलिए कैलकुलेट करने की मोमेंट निकालनी है। ठीक है, जहाँ आप जिस सेक्शन के लिए इलास्टिक कर्व के लिए निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ आपने मोमेंट निकालनी है। ठीक है ना। तो अब ये चूँकि एक ही सिंगल स्पैन की है तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन नहीं है। अगर आप आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ हमने थोड़े बहुत वेरिएशन को रखा है, और उसमें जो मतलब वो है डिसकंटिन्यूटी है लोड्स के अंदर। तो यहाँ तो एक फिक्स वेरिएशन से चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने जो आपको तरीक़ेकार बताया था, तो आपने आपसे ये कहा था कि आप एक फ्री स्केच ड्रा कर दें इलास्टिक कर्व का। तो यहाँ अगर हम एक फ्री स्केच ड्रा करें इलास्टिक कर्व का, तो इलास्टिक कर्व आपके पास इस किस्म का होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यकीनन इस लेवल की बन चुकी है कि आप इलास्टिक कर्व को विजुलाइज़ कर सकते हैं अपने जो खुली आंखों के साथ भी और बंद आंखों के साथ भी कि किस किस्म की इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि इस किस्म जो कैंटिलीवर बीम होती है कि यहाँ जो फिक्स एंड होता है कि यहाँ स्लोप 0 होता है और यहाँ डिफ्लेक्शन 0 होती है। तो वो जब बाउंड्री कंडीशन आएगी तो ये हमने इलास्टिक कर्व को बहरहाल किया, और इस इलास्टिक कर्व में जो यहाँ डिफ्लेक्शन है और जो स्लोप है इसकी हमने इक्वेशन निकालनी। यहाँ जो आप देख रहे हैं डिराइव द इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व, तो इससे मुराद ये होगी कि इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व में स्लोप भी होता है, इलास्टिक कर्व डिफ्लेक्शन को भी शो कर रहा होता है। तो हमने फिर स्लोप की भी इक्वेशन निकालनी होगी और हमने डिफ्लेक्शन की भी इक्वेशन निकालनी होगी।
तो इंशाल्लाह हम इसको ग्रेजुअली और बड़ी स्लोली लेके चलेंगे ताकि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इस काबिल हो सकें कि आप अपने अटैम्प्ट को क्योंकि हमने वहाँ भी अगर आपने एग्जांपल देखा होगा तो अच्छा खासा टाइम आपको समझाने में लगाया था, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है अगर ये इसलिए इस पर टाइम लगाने में या आपको अगर मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है तो डू नॉट पैनिक, क्योंकि यहाँ अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन और मल्टीपल बुक से आप क्वेश्चन को करने के काबिल हो सकेंगे। और वो जब आप, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट रहे हैं और जब आप एक सवाल कर लेते हैं, एक ऐसा सवाल जो आपको ना आता हुआ हो और आप उस सवाल को अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने कंसेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं और वो आपका जवाब सही आता है एट द एंड ऑफ जाके आप क्वेश्चन के एंड में अगर जाके जवाब को रेफ़र करते हैं और आपका जवाब सही आता है तो इट्स सॉर्ट ऑफ मोरल बूस्टर होता है। वो आपका एक कॉन्फिडेंस के अंदर आपको एक एनर्जी देता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये मैं चाह रहा हूँ कि इस पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएं ताकि आप इस काबिल हो सकें कि प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये अटैम्प्ट करने की आपको वाच। तो जो पहला काम इसके अंदर होता है वो रिएक्शन हम निकालते हैं एंड मोमेंट एट द फिक्स एंड सपोर्ट, क्योंकि फिक्स एंड सपोर्ट थी तो इस पर जो टाइप ऑफ लोडिंग है वो आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगुलर लोडिंग थी, ठीक है। तो और ये जो लोडिंग की इंटेंसिटी है वो 0 से लेकर के W0 तक, ये W0 तक इसकी लोडिंग जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपने ड्रा कर दी, लोडिंग ड्रा की, ट्रायंगुलर ड्रा किया। अब होता ये है कि अगर इस लोडिंग के ऊपर एक रिएक्शन आएगा जो और वो रिएक्शन किसके बराबर होगा, वो रिएक्शन नॉर्मली जो इसका सारा के सारा लोड होता है इस सारे लोड की इक्विवेलेंट होता है। जाहिर सी बात है एक ही सपोर्ट है तो सारा के सारा जो लोड होगा दैट वुड बी कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर सपोर्ट। सो ये जो और जो लेंथ है इसकी वो लेंथ इज़ L, लेंथ इज़ L। अब जो टोटल लोड है, टोटल लोड इज जो ट्रायंगुलर एरिया होता है तो उसमें ट्रायंगुलर का एरिया ले लेते हैं, रेक्टेंगल है तो फिर रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। तो अब चूँकि ट्रायंगल है तो आपको ट्रायंगल का एरिया पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट से होता है, तो बेस इज L एंड हाइट इज W0, तो दैट विल बी टोटल लोड। और चूँकि हम ये कहते हैं कि जो वेट होता है या जो लोड होता है दैट सीम्स टू एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप, जैसी भी शेप होगी इसकी सेंट्रॉइड पे। चूँकि ट्रायंगुलर शेप है तो आपको पता है कि ट्रायंगुलर का जो सेंट्रॉइड होता है वो यहाँ से 1/3 पे होता है और यहाँ से 1/3 पे होगा, ये जो चीज़ होगी ये 1/3 होगी और यहाँ से यहाँ तक का 2/3 होगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी तक तो हम जब मोमेंट निकालेंगे तो देखेंगे जब हमने लोड लगाना है, लोड कहाँ लगाना है, लोड सेंट्रॉइड पे लगाना है। तो ये सेंट्रॉइड के ऊपर हमने लोड को लगा दिया और हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द लोड विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और ये जो लोड होगा दैट वुड बी ट्रांसफर टू दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट की तरफ बच रहा है ये 2/3 ऑफ द L होगा, राइट की तरफ 1/3 ऑफ द L होगा, ये भी मैंने आपको समझाया। और जो रिएक्शन आ जाएगा डेफिनेटली जो सारा की सारा ये लोड है दिस होल लोड वुड बी ट्रांसफर्ड एज अ रिएक्शन टू दिस, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने चूँकि सपोर्ट को हटा दिए बट स्टिल द बीम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, जो आपकी शेयर फुल बेंडिंग डायग्राम के आपने इक्विलिब्रियम को देखा होगा तो अभी तक बीम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको इसके अंदर एक मोमेंट भी लगाना पड़ेगी एंड दैट मोमेंट वी आर कॉलिंग इट टू बी द मोमेंट एट A, ठीक है। तो दैट मोमेंट जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि दिस पर्टिकुलर जो रिएक्शन है दिस इज बीइंग अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ द जहां आप मोमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट एंड द ओनली थिंग दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग वुड बी दिस लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड, दिस मच इज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो यू विल गेट द मोमेंट MA एंड दैट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपको मोमेंट मिल जाती है तो वो W0L²/3 की मिल जाती है, क्योंकि 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो W0L²/3 इज़ द मोमेंट एट फिक्स एंड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है कि रिएक्शन हमने कैसे निकाला, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि अगर आप चीज़ें वो रिकॉल नहीं हुई हैं तो हम इसको यहाँ दोबारा से देख लें। तो दिस वुड बी द रिएक्शन एंड दिस वुड बी द मोमेंट। और मोमेंट चूँकि हमने माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि ये रेजिस्टिव मोमेंट है और इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी एंड काउंटर क्लॉकवाइज वी टेक एज द नेगेटिव। तो ये रिएक्शन एंड मोमेंट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चल सकते हैं। जो रिएक्शन है वो इस लोड से निकलता है, ये हमने पहले कर लिया, ये भी आपको निकालना आ गया है। तो यू कैन वी आर आपको समझ में आ चुकी है कि रिएक्शन कैसे निकलना है, आपको समझ में आ चुकी है कि मोमेंट कैसे निकलनी है। तो 2 रिएक्शन और मोमेंट आ गई। अब अगर हम आगे चलते हैं तो मोमेंट इक्वेशन आपने बनानी है। मोमेंट इक्वेशन के लिए भी हम देखते हैं कि मोमेंट एट डिस्टेंस x, नॉर्मली ये होता है कि आप डिस्टेंस x के ऊपर सेक्शन को कट करते हैं और वहाँ मोमेंट निकालते हैं। तो ये अगर एक आपके पास वो जो लोडिंग थी ऑल टुगेदर तमाम की तमाम लोडिंग थी और इसमें से अगर आपने एक सेक्शन कट किया तो जो इस जगह के ऊपर आपको जो चीज़ मिल रही है वो
ये मिल रही है। लेट सपोज आपने इधर आके ये सेक्शन कट कर दिया था, ठीक है, तो वो यहाँ जो इंटेंसिटी है वो W है, ये इंटेंसिटी W0 है एंड दिस इंटेंसिटी W, ये कितनी होगी ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ इसकी L थी और जहाँ आपने सेक्शन कट किया यहाँ जो मोमेंट थी वो मोमेंट MA के ऊपर भी लग रही थी, जो रिएक्शन था वो अपनी जगह के ऊपर रिएक्शन भी लग रहा था जो आपने वहाँ लास्ट में कैलकुलेट किया। और ये जो अब आपके पास जो शेडेड ब्लू ट्राइंगल आ गई है ये वो कट सेक्शन की ट्राइंगल लोड है और इस लोड की जो इंटेंसिटी R होगी वो यहाँ हम लगाएंगे। वो कितनी इंटेंसिटी होगी वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो सेक्शन हमने कट किया है वो सेक्शन X के ऊपर कट किया है। तो अब हम यहाँ इस जगह के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे और समेशन ऑफ मोमेंट ले लेंगे जितनी भी इसके लेफ़्ट के ऊपर जो मोमेंट है, ये दिस इज़ द लेफ़्ट, ये जो चीज़ है वो लेफ़्ट है और यहाँ जो ये वाली चीज़ है ये सारी की सारी चीज़ ये सारी राइट है। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट द लेफ्ट और इस पॉइंट के ऊपर आप इसको कट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट विच यू आर कंसिडरिंग, ठीक है जी। तो अगर यहाँ आप कंसीडर कर रहे हैं तो फिर यहाँ की सारी आपने मोमेंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोमेंट कंट्रीब्यूट एक आपके पास ये कर रही है, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो ये कर रही है और तीसरी आपके पास ये कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी कितनी मोमेंट जाके सारी की सारी हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी मोमेंट यहाँ कैलकुलेट कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही। अच्छा, तो यहाँ मोमेंट हमने निकाल लिया है, इस मोमेंट को हम यही देख लेते हैं कि मोमेंट क्या है। तो अगर आप देख रहे हैं कि W0L²/3 है, ये जो मोमेंट है दिस इज़ M0 विच इज़ दिस थिंग, MA जिसको आप कह रहे हैं, दिस इज़ MA, ठीक है, प्लस W0 हाफ W0L/2 जो कि आपके पास ये रिएक्शन आया था ये वाला, इनटू मल्टीप्लाइड बाय X, ठीक है, ये आपके पास दूसरी चीज़ हो गई। और चूंकि ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसकी जो मोमेंट आ रही है वो यूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी आपके पास जो है यू ले लिया आपने। और थर्ड पे आपके पास ये जो मोमेंट आ रही है ये इसकी हम मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं कि ये मोमेंट कैसी आ रही है। तो ये क्या होगा, R होगा। अब R हमने कैसे निकालना है, ये R के लिए अब आपको देखना होगा कि ये लोड आपने निकालना है। असल में इस लोड का इशू है कि ये लोड आपको पता नहीं है, तो ये लोड हम सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक ये बड़ी ट्रायंगल है दिस वन और एक ही शेडेड जो ब्लू ट्रायंगल है ये है। तो इन दो को अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सिमिलर, ये यकीनन आपने अपने उसमें किया होगा जब आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर रहे थे। तो बहरहाल अभी हम इसको दोबारा कर लेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल से अगर आप लगाएंगे तो आप क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर इसका और इसका रेशो ले लेंगे, ये कि W/W0, ठीक है। तो अब इसका छोटी ट्रायंगल का चूँकि आपने W ऊपर लिखा है तो फिर इस छोटी ट्रायंगल का आप ये डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस है बेस का X और बड़ी ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है वो L। तो चूँकि आपने ये W फाइंड करना है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि W इज़ इक्वल टू W0/L × X, राइट। सो ये R जो आपके पास आया है, ये जो W आपके पास आया है वो ये आ गया। अब अगर आपने R निकालना है तो R इज़ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट विच इज़ W एंड दैट वुड बी इक्वल टू W0X/L। सो ऑल दीज थिंग किसके बराबर हो जाएगी, W0X²/2L। सो दिस इज़ R, ये जो है ये R है। अब R टाइम दिस डिस्टेंस विच इज़ 1/3 ऑफ X, ठीक है, तो दिस इज़ 1/3 ऑफ X। तो ये तीन तरह की मोमेंट आ गई आपके पास। तो होपफुली ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो अब आपके पास ये दो मोमेंट क्लॉकवाइज आ गई और ये तीसरी मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज आ गई। तो ये आपने नेगेटिव में लिख दी, या आपने ये नेगेटिव में इसलिए लिख दी क्योंकि इसकी अपनी डायरेक्शन नेगेटिव की थी, ठीक है, ये इस वजह से हमने इसको नेगेटिव में लिख दिया। तो ये आपके पास तीनों मोमेंट की समेशन कर ली है। तो दैट इज़ द मोमेंट एट द पॉइंट X। अगर आप इसको X ले रहे हैं तो यहाँ आप छोटा सबस्क्रिप्ट में X भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द मोमेंट। फर्स्ट स्टेप में आपने मोमेंट कैलकुलेट किया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि उस मोमेंट को हम वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके अंदर हम पुट इन कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई किया है तो इस फॉर्म में आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं कैसे होती है। नाउ पुट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व विच इज़ दिस थिंग। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस m की जगह के ऊपर हम ये वाला m पुट कर देंगे। तो लेट्स पुट इन और देखते हैं कि क्या होता है। ये पुट कर दिया। आप क्या करेंगे, वंस डेरिवेट करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ द स्लोप, इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व ऑफ द स्लोप, एंड देन सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो दैट वुड बी इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व ऑफ द डिफ्लेक्शन। So now integrating the above equation once give the equation of the slope and that would be this thing.
अब मोर इंटीग्रेशन की डिटेल हम नहीं जा रहे कि वो कैसे होगा, क्योंकि कल अच्छे एक दो लड़कों ने अटैम्प्ट किए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई तो उसमें ये नज़र आ रहा था कि वो उन्होंने सेगमेंट्स को नहीं ले पा रहे थे। जहाँ जहाँ वेरिएशन ऑफ लोड होगी वहाँ वहाँ अपने सेक्शन को अलग कट करना होगा। तो यहाँ तो सिमेट्री थी हमारे पास, जो वेरिएशन थी वो कंसिस्टेंट वेरिएशन थी, हमने एक सिंगल सेक्शन लिया। आगे वाले सवाल में देखेंगे कि मैंने वेरिएशन वाले भी इंक्लूड किए, तो वहाँ फिर आपको जहाँ जहाँ वेरिएशन होगी उसके सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे बीम के। अगर एक ही वेरिएशन है तो फिर 2 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, अगर 2 वेरिएशन है तो फिर आपको 3 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। तो जहाँ लोड की वेरिएशन होगी वहाँ आपको सेक्शन उससे लेफ्ट के ऊपर सेक्शन कट करने होते हैं, तो जितने उतने नंबर ऑफ सेक्शन आपके पास और सेगमेंट्स आते रहेंगे। तो बहरहाल जब इसको आप डिफरेंट इंटीग्रेट करते हैं एक दफ़ा, तो इंटीग्रेशन का आपको पता चल गया है। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स था तो ये एक्स आ गया, ये एक्स का स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये 3 था तो 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, और यहाँ एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन C1 आ गया। सो ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम एक दफ़ा और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो जब आप करते हैं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम नहीं जा रहे, ज़ाहिर है वो आपको स्टेप सारे समझ में आ गए हैं। तो जो फिर असल समझने की चीज़ है कि किस तरीके से हमने सेक्शन लेने हैं, किस तरीके से मोमेंट्स लेनी है, उस मोमेंट को किस तरीके से पुट करना है, क्योंकि वंस यू पुट इन दैट मोमेंट इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन जो आगे का स्टेप है, जो 2 स्टेप इंटीग्रेशन के हैं, सो दैट आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक स्टेप्स, एंड दैट आपने यूजुअली जो है उसको इंटीग्रेशन में अपने बेसिक इंटीग्रेशन है ना, कोई एडवांस इंटीग्रेशन भी नहीं है उसमें। सो अब अगर आप देख रहे हैं तो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गए हैं, वी हैव C1 एंड C2। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए विल यूज़ द बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन ये है कि डिफ्लेक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप डिफ्लेक्शन को 0 डाल देंगे तो ये चीज़ 0 हो गई, ये x 0 हो गया, ये x 0 हो गया, ये x 0 हो गया, ये x 0 हो गया। तो सारी चीज़ यहाँ से आपको देखेंगे C2 इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट C2 इज इक्वल टू 0। एंड देन जो अब हमें दूसरी कोई चीज़ पता है कि स्लोप इज ऑल्सो 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। पुटिंग इन दिस कंडीशन में आप पुट करेंगे स्लोप वाली इक्वेशन में, और वहाँ पुट करने के बाद आपको C1 भी 0 मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि C1 और C2 दोनों 0 हो गए। तब आपके पास जो ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ गई वो सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन, W0 x स्क्वायर अपॉन 120L। ये 20 भी यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द this is the deflection equation of the elastic curve. From this equation you can find out the deflection. So hopefully ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो बिफोर मूविंग टू दिस थिंग, या तो हम ये कि हम ये एक इसको हम पार्ट में कर लेते हैं, प्रॉब्लम 6.4 हम उसको पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम 6.4 करते हैं।